I'm going to share that screen में बस welcome screen खाली मैं शुरुआत करता हूँ. Is it this version? Yes, it is. Yeah, okay, fair enough. Okay. Ravi ji, you have a store in Powai? Yeah, yes, retail Okay. store. हाँ. One in Powai and one in Chandivali. अच्छा, okay, okay. Powai में कहाँ ये अपने हाइको हॉल में? Yeah, that is a mall, Galleria Mall. हाँ. Yes. Okay, so I know that mall because 20 years back, I had started a store over there called Intergold, जो Aura हो गया. Yeah, Aura is there. Is over there, हाँ. I am the owner of that store. अच्छा. We had rented them. अच्छा. Okay. तो जब ये ओपनिंग किया था तभी मैं जॉन अब्राहम को लाया था वहाँ पे वो जमाने में. जॉन अब्राहम और रिया सेन को लाए थे वो ओपनिंग किया. Yeah. You means you were in Intergold, no? First. Yeah, I was with Rosie Blue for about 13 years. Okay. Mohsin used to see that store. हाँ. Yeah. Namaste, Ravi ji. Namaste, Sudarshan ji. How are you? I'm good. How are you doing? Fine. Lockdown. But Naveen ji, situations are getting worse day to day. For everybody, no? खाली आपके लिए और मेरे लिए थोड़ी, दुनिया के लिए. मतलब जैसे बिजनेसेस में बहुत मुश्किल हो रही है सर अब. जैसे एक डे आगे जा रहा है ना. लोग ट्राई कर रहे हैं पॉजिटिव रहने का, बट कुछ चीजें ड्रैग कर देती है नीचे. करेक्ट. बट क्या है कि you don't have much of choice. Okay. Yeah. जितना आप negative. It is beyond our circle of influence. बराबर. Exactly. So let's not think about the concern now. We will जितना positive रह सके हमको वही देखना है करते. Right. In fact, I'm surprised you're here because ये वाला जो है, I don't know how important it will be for you because ये जो आज का जो session है ना, it's largely for a lot of students who are from outside the industry who are wanting to get in the jewelry industry. Okay. ये industry में होता क्या है, क्या काम होता है, क्यों आना चाहिए, क्या जॉब कर सकते हैं. It is largely for that category of people this time. Okay. So how I received this invitation? I don't know how you got this. So even I was wondering when I saw you आया सुदर्शन के how is Ravi Bhandari here kind of a thing. तो आप तो हमारे पाठशाला में भी थे, आप तो और किस में भी थे kind of a thing. Yeah. So I don't know. So I was wondering how come you got it being a jeweler because this is largely for students kind of a thing. Okay. So means what is this first time or what? First time. So I'll tell you what is happening is there are a lot of people who are outside the jewelry industry जिसको हमारी industry में कदम रखना है. Okay. Right. उनको पता नहीं है कि हम किस तरह से कदम रखें, हम क्या करें, हम मैनेजर कैसे बने, हम सेल्स पर्सन कैसे बने, जो नॉलेज उनको चाहिए ना, क्या सीखना पड़ेगा ये इंडस्ट्री में आने को. तो ये कोर्स बेसिकली उनके लिए जो 12th में है, 13th में है, 15th में है, कुछ ग्रेजुएशन के बाद कुछ पढ़ाई कर रहे हैं. So any institute is means doing this. It's called Share Skills Online. Okay. So it's a skilling body जो अलग-अलग लाइन का स्किल्स आपको सिखाती है. So because हमारा इंडस्ट्री में भी बहुत सारा अभी अब इंडस्ट्री बन गए, हम लोग भी इतना रिक्रूट करते हैं लोगों को. तो they have hosted this कि you should be teaching other people how to get into the jewelry industry also. Wow, good. Yeah. So means this is incorporated by you or what? Yeah. So this is the whole training is done by us kind of. Good. Congrats. Thanks a lot. Yeah. Thanks a lot. In fact. So we are doing a lot of things. You all carry forward then. We will meet catch up, next time. हाँ तो मैं वही सोचा कि मेरे हिसाब से आपके लिए इतना relevant नहीं है. तो Right. Okay. Thanks a lot. Bye. Nice meeting you. Thank you. Bye, Ravi ji. Bye. How many of us are in? 13 participants, and now the 14th one is coming in. Okay. There are about 15 of us now. Yes. Okay. We'll just wait for Vaibhav to come in. Welcome everybody. We're just waiting for Vaibhav to come in and then, Yes. Naveen, I'm there already. You're there? Okay. What is your code called? I guess मेरे थोड़ा unmute करके रखा. हाँ, unmute was there. Unmute option. My code. Galaxy A8 Plus.
Galaxy 8 Plus, right. One second. So let me just see. So I will also make you a host so that Yes. even you can participate then better. Yes. So Darshan, he's inside the room? Yeah, he's inside. He's in the room. Yes, I'm there. Galaxy A8 Plus 2018 लिखा है? 2018. Correct. Okay, so I'm making Vaibhav also co-host. So he's there. Yes. Vaibhav ji, we can't see you. आप please अपना ये video. नहीं, but I'm okay with. Okay, fine, fair enough. Okay, cool. ठीक है, I'm okay with that. ठीक है. Okay, cool. So of course बहुत सारे ग्रेस लाइनअप में है, बहुत सारे लोग पीछे. Okay, because अभी जस्ट मैंने बोला है कुछ स्टूडेंट्स को, तो दे विल बी जॉइनिंग नाउ. Okay. अब ये मेरा कैसा होता है कि मोस्टली इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बैकग्राउंड है स्टूडेंट्स का. ओके, तो दिस इज समथिंग मैंने उनको बोला है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री, मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा क्वेश्चन है ऑलरेडी, बहुत सारे लोगों ने कुछ है यास्मी की ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? कैन हम नॉर्मल बीकॉम ग्रेजुएट कैन कम इनटू द ज्वेलरी इंडस्ट्री? Correct. So good. So the whole idea is we'll be sharing all of that, and yes, even if you're a normal BCom graduate, in fact, market अभी इतना खुल गया है, honestly, with the coming of brands, with retail जैसा grow हो रहा है कि काफी जगह पे अगर आप BCom graduate नहीं भी हो, लेकिन आपने 12th किया है और आपका कॉलेज चालू है और आपका कॉलेज आप सुबह को जाके 10 बजे खलास होता है, and you are comfortable in English, मराठी एंड हिंदी, ये 3 लैंग्वेजेस में प्रेजेंटेबिलिटी अच्छा है, तो आपको जॉब्स मिल रहा है रिटेल में. ओके, ओनली थिंग यू शुड नो लिटिल बिट ऑफ बेसिक्स ऑफ ज्वेलरी, तो यू विल गेट अ जॉब इन द ज्वेलरी इंडस्ट्री. ओके, सो द बेसिक्स हम वो सिखाते हैं. सो द बेसिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू बी डूइंग इन द फ्यूचर, व्हिच आर गोइंग टू बी इंट्रोड्यूसिंग, इफ दे नो दैट then it is very easy for them to get enrolled into the jewelry industry. इतना मुश्किल नहीं है. Okay, in sales, in the job of sales, so बहुत सारे positions है जो मैं share करने वाला. Correct. ठीक है. Okay, done. So, what I would feel now, Vaibhav, is that once you feel that we are ready to start, you can welcome everybody. You can just give a 1 minute introduction on us, and then I'll take charge. Okay. ठीक है. We are about 16 of us now. About 16, yes. Okay. I'm just reminding them one more time. मैसेज में डाल रहा हूँ सबको. Okay, welcome everybody. आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जब तक वैभव gets going, I'll just introduce myself. My name is Naveen. I'm going to be the lead speaker. Mainly मैं speak करने वाला हूँ. मेरा assumption है कि काफी लोग जो यहाँ पे है वो Zoom कॉल पे पहले गए हैं, उनको मालूम है किस तरह से अपने आप को कैरी करना होता है. मैं बेसिक रूल्स थोड़ा एक समझा देता हूँ. प्लीज बी कंफर्टेबल. दिस इज नॉट अ वेरी बिग क्लास हैपनिंग. हम लोग एक्सचेंज करने वाले हैं व्यूज. ओके, जब हम व्यूज एक्सचेंज करने वाले हैं, बिकॉज कुछ कंटेंट भी मेरे को आपको समझाना है, दिखाना है, मैं ज्यादा करके बात करूंगा. एंड ऑफ द होल सेशन पे मैं आपको मौका देने वाला हूँ, आपके जो भी क्वेश्चंस हुए, जो भी डाउट हुए ज्वेलरी इंडस्ट्री को लेके, टॉपिक को लेके, लर्निंग को लेके, आप वो पूछना. किस तरह से पूछोगे? देयर इज समथिंग कॉल्ड अ चैट विंडो. आई डोंट नो इफ यू अवेयर. आप अगर नीचे जाते हो तो वहां पे चैट का एक बॉक्स होता है आपके इसमें. ओके, वो चैट विंडो में आपको जो क्वेश्चन पूछना है, आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मेरे साथ मेरे को ट्रेनर्स हैं हर्ष और सुदर्शन जो है मेरे साथ. वो लोग वो चैट विंडो में जाके चैट का क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो भी रेलेवेंट होएगा हमारे सब्जेक्ट को. ओके, दोस क्वेश्चंस दे विल पुट टू मी एंड आई विल आंसर देम. ये पूरा एंड पे होएगा, एट द एंड ऑफ द होल सेशन. तो एनीथिंग जो आपके दिमाग में आता है आप चैट विंडो पे डाल सकते हैं. जब हम अभी ऐसा बात करते हैं तो बहुत लोगों की ये होता है कि लिसन, माइक बंद रखो, वीडियो कैमरा बंद रखो. ये सब
मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, माइक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है बंद रखना, बिकॉज अगर माइक खुला होएगा और आपके साइड पे किसके पास कभी डॉग है, किसके पास कोई कुछ और कुछ है, माहौल का आवाज है और वो आता है, तो मैं इंसिस्ट करता हूँ कि माइक ऑफ रखो। लेकिन एवरीबडी इज ओपन टू कीप द वीडियो ऑन। ओके, वीडियो ऑन होएगा ना तो हम एक दूसरे को देखेंगे, कनेक्शन और स्ट्रांग रहता है। तो मैं कंफर्टेबल हूँ मेरा वीडियो ऑन रखने, मैं कंफर्टेबल हूँ कि मैं टीच कर रहा हूँ और मैंने टोपी पहना है, मैं कंफर्टेबल हूँ मैंने टी शर्ट पहना है। जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ मैं अपने आप को उस तरह पेश करता हूँ। तो आप भी जैसे कंफर्टेबल हो, अगर आप कंफर्टेबल हो वीडियो दिखाने को, आप वीडियो दिखा सकते हो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल वीडियो बंद करने को, तो आप बंद रखो। But the whole idea is that we have to get comfortable with each other, then only we'll learn from each other, otherwise the learning won't happen. So these are the basic rules, and whatever you want to ask chat window में डाल दो। Okay? और end of the whole thing पे I'm going to give you a chance to talk and you can share your views over here. Okay, we can start now. We can start now. We are about 15 members. There's one person in between. Yes. Sudarshan, you let that person in and we'll start. He's already joined. Yes. Okay, let's Harsh, you man the chat window. Yes. Okay, Sudarshan is manning the waiting room and everything else. You man the chat window. अगर chat window पे कुछ है which is urgent, you will let me know. Yes. If there's anything else that you need to speak to me, my phone is on. Okay. Vaibhav, I think you should begin first. Yes. Okay. So good afternoon, students. As I told you that we are going to get start with this you can say webinar series where experts from different fields and diverse field will be coming and sharing their experiences and career options for you. As Naveen sir already explained that this jewelry industry career is open to all. Anyone would be having a basic knowledge of jewelry and technicalities can join this industry. Okay. And apart from that, we have some other many plans for you also. If you are thinking about the jewelry industry and if you are not happy with your current, you can say academics. Suppose you are a commerce student and you are not happy with your field, economics and banking में and आपको accountancy में काम नहीं करना है, आपको something और jewelry industry अगर आपको attract करती है, especially the girls who have joined, then this session will be very helpful for you. ठीक है? So Naveen, we can proceed then from you. Okay. तो मैंने ना सबके चैट विंडो पे एक मैसेज डाला है। ओके, वो मैसेज पे लिखा है इफ हिंदी देन एच, इफ इंग्लिश देन ई, इफ बोथ देन बी। इसका मतलब कि जब हम बात कर रहे हैं, व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, सम पीपल मे बी वेरी कंफर्टेबल विद इंग्लिश, सम आर वेरी कंफर्टेबल विद हिंदी, सम आर very comfortable with both. I won't know what language should I talk with. अगर मेरा कनेक्शन बराबर नहीं जुड़ेगा तो आप कुछ सीखोगे कि नहीं, सीखोगे कि नहीं तो आप चले जाओगे, मजा नहीं आएगा. I don't like that. Okay, so if you're with me, you'll be 100% with me. So all you have to do is chat window पे अगर आपको हिंदी चाहते हैं तो आप H करो, इंग्लिश चाहते हैं तो E, अगर आपको लगता है both में को चलेगा तो आप B करो. Okay? So I want to see an E, an H, E or a B in the chat window. Yeah, you tell me over here. Okay, B. Okay. So I've got 4 Bs, which means people are comfortable with both the languages. Anybody else? Vaibhav, I want you also to write in. So 5 गिनती में आएगा. B. Okay. 5 Bs. 6 Bs. Okay. So very good. So I've got largely Bs, which means that Vaibhav, that everybody over here is comfortable with English as well as Hindi. Yes. तो मैं दोनों लैंग्वेज में शटल करूंगा, किसको तकलीफ नहीं होएगा. I don't have to talk only in Hindi. Yes. Very good. चलो. So it makes my job easy. It makes it fun also. So let me begin from where I think we should all begin. मेरा व्यू ये है कि आपको सामने वाले को जानना और ये कोर्स को जानना बहुत ज़रूरी है before we actually get started over here and we start learning. So I'm going to share a screen over here. Okay. The screen has a small presentation which is all about what we're going to be doing today. Okay. So firstly is I welcome everybody. So you see a warm welcome from News. News is my company. My name is Naveen Sadarangani. और वहाँ पे एक पिक्चर है, पिक्चर पे लिखा है बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है. Okay? लेकिन मेरे को बोलने के लिए तो मेरे को बोलना पड़ेगा. Okay? I don't have a choice. I have to talk. Somebody has to talk so that somebody will talk for everybody. Vaibhav is part of Share Skills and he is the one who set up this platform called Share Skills. So you see Share Skills down there in the bottom. And his whole philosophy of Share Skills is कि सभी स्टूडेंट्स अगर अपना खाली टाइम को यूज करें और कुछ ना कुछ सीखने में लग जाए ना, तो जब
उन लोग का नौकरी करने का टाइम आएगा या मार्केट में एंट्री करने का टाइम आएगा, they will be capable of choosing the job of their dreams. Everybody is not intended to be in the jewelry industry. Okay, कुछ लोग को jewelry industry में जाना है, उनके लिए अच्छा है. कुछ लोग को सॉफ्टवेयर में जाना है, कुछ लोग को कॉल सेंटर में जाना है, कुछ लोग को और कोई रिटेलिंग में जाना है, कुछ लोग को ऑफिस में अकाउंट्स में जाना है. हर एक का अलग अलग शौक है, लेकिन वो शौक कभी आदमी परस्यू करता है जब भी उसको पता है कि इसके जॉब का मतलब क्या है और आगे जाके क्या मिलने वाला है और क्या फ्यूचर है. तो मैं आपको जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री का इनसाइड आउट देने वाला हूँ. ओके, मैं कौन होता हूँ वो देने का? Why will you trust me? Somebody sitting in the home wearing a night shirt, wearing a cap and talking to you. How do you think you can trust somebody? Okay, so we can't trust anybody for the right information, which is why trust ascertain करने के लिए कि आप मेरे पे भरोसा करो, मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्यों ज्वेलरी इंडस्ट्री के हिसाब से बात कर सकता हूँ, उसका मैं आपको 4 मिनट का प्रेजेंटेशन दूंगा मेरे बारे में. तो आपको भरोसा होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें बात में दम है कि नहीं. Does it make sense, Vaibhav? Yes, yes, of course. Okay, so first I have to prove myself. It's just like somebody like this person. Okay, this person who I'm going to share a video with, he is one of the most well-known people in this country, also in the world. Okay, दुनिया में सबसे नामी आदमी है, सब लोग जिसको जानोगे वो आदमी यहाँ है. ओके, अगर वो कुछ बोलता है तो लोग सीरियसली सुनते हैं. आज के तारीख में भी उसका जो कहना है, just listen to what he has to say. Okay, the end result is that you have to trust when you want to learn. You have to believe in training कि भाई मैं कुछ भी हूँ, I am trainable. मेरे को ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कोई ना कोई फील्ड में. और मेरा जो टैलेंट है ना, हर आदमी के पास टैलेंट है, कोई भी यूजलेस नहीं है. आई डोंट बिलीव एनीबॉडी इज यूजलेस. एवरीबॉडी हैज टैलेंट, लेकिन टैलेंट किसका है ना, उसका जानकारी आपको निकालना पड़ेगा. अगर सचिन तेंदुलकर फुटबॉलर होता तो शायद इतना कामयाब नहीं होता, बिकॉज हिज टैलेंट वाज फॉर क्रिकेट. आपका टैलेंट क्या है ना, आप वो खोजो. आपका टैलेंट आपका इनर पर्सनालिटी के अंदर छुपा होता है. कुछ लोग को कंप्यूटर पे काम करने को अच्छा लगता है, कुछ लोग को भटकने को अच्छा लगता है, कुछ लोग को काउंटर पे रह के कस्टमर से बात करने को अच्छा लगता है, कुछ लोग को मैथ्स अच्छा लगता है, कुछ लोग को एनालिटिकल अच्छा लगता है, कुछ लोग को नया क्रिएटिव आइडियाज अच्छा लगता है. आपका टैलेंट, हिडन टैलेंट क्या है ना, वो आप ही जानते हो. अगर आपने जो भी काम परस्यू किया जिसमें आपका हिडन टैलेंट काम में आएगा, तो ही आप लाइफ में आगे जा सकते हो. और लाइफ में आज जैसी कठिनाइयां जैसी है, आज जब भी आप लोग आ रहे थे, आई वॉज टॉकिंग टू अ वेरी बिग ज्वेलर फ्रॉम पवाई. ओके, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू वर, ही वाज टेलिंग मी कि भाई टाइम बहुत मुश्किल हो गया है. तो टाइम सबके लिए मुश्किल हो गया है, बट ही ऑल्सो अलॉन्ग विद स्टूडेंट्स, इवन ही हैड जॉइंड इन, बिकॉज उसको जहां भी मौका मिलता है सीखने का वो खुद ही मारता है. तो उसका एटीट्यूड है कि भले वो ज्वेलर है, उसको शर्म भी नहीं है और डर नहीं है और ईगो नहीं है कि मेरे को कोई भी बच्चे जैसे 20 साल 30 साल छोटे हैं, मैं उनके साथ बैठ के भी सीख सकता हूँ और कुछ सीखूंगा. और इसमें तो वो भी आ गया था. ओके, नाउ द होल आइडिया इज ही इज पॉजिटिव. दैट्स व्हाई द वे ही विल डू हिज बिजनेस इन द फ्यूचर विल बी इन अ पॉजिटिव मैनर. So this is what somebody over here is saying. I'm going to introduce you to what Amitabh Bachchan has to feel about the India that we are living in. Okay, so you look at this video, listen very carefully कि वो क्या बोल रहा है और समझने का कोशिश करो, फिर ही हम आगे जाएंगे. इस देश में 2 भारत बसते हैं. एक वो भारत जो जंजीर तोड़कर प्रगति की उड़ान लगाने को बेताब है, और दूसरा भारत जो खुद जंजीर है. एक भारत कहता है मुझे मौका दो, मैं खुद को साबित करके दिखाऊं. दूसरा भारत कहता है पहले खुद को साबित करो, फिर शायद तुम्हें कोई मौका मिले. एक भारत हमारे दिलों की उम्मीद में बसना है, वहीं दूसरा भारत हमारे दिमागों की संदेह. एक भारत करता है तो दूसरा भारत सोचता है. एक भारत आगे बढ़ता है तो दूसरा पीछे चलता है. लेकिन बदलाव का सूरज निकल रहा है. हर पल अनगिनत देशवासी उस भारत से इस भारत गर्व से शामिल हो रहे हैं. दुनिया टकटकी लगाए एक धड़कते गरजते भारत का उदय होते देख रही है. एक ऐसा भारत कामयाबी में जिसका भरोसा हार के डर से कहीं बड़ा है. एक ऐसा भारत जो स्वदेशी का राग छोड़कर विदेशी कंपनियों पर अपना तिरंगा लहरा रहा. कहते हैं इतिहास हवा का वो झोंका है जो वक्त बताकर अपना रुख नहीं बदलता. बस यही वो वक्त है
जब इतिहास करवट ले रहा है। आजादी के इतने वर्षों के बाद ये देश गिरते संभलते थमते बढ़ते एक नए मुकाम पर आ पहुंचे और अब 60वें वर्ष की शुरुआत में दोनों भारत समय की कगार पर आमने सामने खड़े हैं। एक भारत नीचे की गहराई देखकर कश्मकश में है और दूसरा भारत आसमान की ओर सर उठाकर कह रहा है उड़ने का वक्त आ गया। ओके, तो ये आपको वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि आप जानो कि इंडिया में और पूरी दुनिया में ऑलवेज दो प्रकार के लोग होंगे। Whenever there is some difficulty which happens, anything which happens, we get scared और हम नेगेटिव ही सोचेंगे, क्या होएगा क्या होएगा क्या होएगा, अभी तो ऐसा होएगा, अभी तो आधा धंधा बंद हो जाएगा, फ्यूचर तो बहुत ब्लीक है, अभी मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं किया तो जॉब्स नहीं मिलेंगे, ये सब उल्टा 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 सोचते हैं। और एक वो लोग हैं जो बोलते हैं यार ये तो बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, अभी मेरे को कुछ सोचना पड़ेगा कुछ नया करने का, तो मैं कुछ नया आइडिया निकालता हूँ जिससे मैं न्यू बिजनेस या नया आइडिया से मेरा पुराना बिजनेस क्या नया आइडिया से करूँ। मार्केट टफ है, बिजनेस मुश्किल होएगा, लेकिन आई एम श्योर कुछ ना कुछ डेवलप होएगा। तो जैसे ये दो लोगों का सोच है वैसे पूरे इंडिया का भी सोच इसी तरह का है, एंड दैट इज व्हाट मिस्टर बच्चन इज सेइंग। व्हेन मिस्टर बच्चन सेज दिस वी लिसन प्रॉपर्ली बिकॉज ही इज मिस्टर बच्चन। हमारा आदत है इंडिया में ओके कि हम तीन चीज फॉलो करते हैं। ओके, तीन चीज को मैं बोलता हूँ ABC। इंडिया में कोई भी चीज मार्केटिंग करनी है, फिर वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि टी शर्ट है कि शूज है, कैप है, जड़ी बूटी है, व्हाटएवर यू वांट टू मार्केट, in India you will see that people use three things. Those three things are ABC. A for astrology. Okay, astrology मतलब ऐसा करा तो ऐसा होएगा, ये करा तो ऐसा करा, बहुत हमारे पास बहुत अंधविश्वास है हमको एस्ट्रोलॉजी में। The second is B, which is Bollywood. बॉलीवुड अगर बोलता है ये स्टार वो स्टार बोलता है तो वो पहनने का। एंड C is cricket. We follow cricketers a lot. तो ये ABC ना इंडिया का रिलीजन है। घर में पैसे नहीं होंगे लेकिन हर आदमी आपने अपने हाथ में एक कोई मूंगा का अंगूठी, कोई पर्ल का अंगूठी, कोई सफायर का अंगूठी पहनता है। उसका पगार नहीं होएगा 5,000 का वो बेचारी लेडी का, लेकिन वो भी जब भी घर का डोमेस्टिक कोर्स करती है या बाई का काम करती है या ट्रेन में कोई आदमी लटक के जा रहा है, उसके हाथ में मैं देखता हूँ ना तो उसने भी अंगूठी पहना है और वो अंगूठी का उसने 9,000 दिया है। मतलब जो अंगूठी का वैल्यू 3,000 रुपया नहीं है उसका उसने 9,000 दिया है बिकॉज उसको बिलीफ इतना स्ट्रांग है कि इससे मेरा किस्मत बदलेगा। सेम वे व्हेन बॉलीवुड टॉक्स, व्हेन क्रिकेटर्स टॉक, वी बिलीव विद ब्लाइंड फेथ। नाउ आई डोंट वांट यू टू हैव ब्लाइंड फेथ इन मी जस्ट बिकॉज Vaibhav has caught me and put me in front of you all. Okay? Yes. I'm going to prove why you should trust me because जब तक आप मेरे को ट्रस्ट नहीं करोगे ना आप आगे का पार्ट ध्यान से नहीं सुनोगे। So I'm going to share my story in 4 minutes कि मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ, क्यों मैं जो करता हूँ। मेरे स्टोरी का नाम ही ना मैंने सेल्फिश रखा है। सेल्फिश क्यों? It's a story about self. And I'm going to share, I'm the only one among all 15 of us now who's getting a chance to share my story with you. Nobody else is getting a chance to talk about themselves for 5 minutes, 10 minutes. I'm the only one. So as such, I'm being selfish. But मेरा selfish होना जायज क्यों है? Because जब तक मैं अपने आप को present नहीं करूँगा, तब तक आप मेरी आगे की बातें नहीं सुनोगे. Okay? So this is my different avatars. Okay, so when I'm a teacher, when I'm a student, I'm very much interested in sports. I have a cricket team of TV stars. I do a lot of work in that zone also. मेरे को sports, innovative ideas, training, वो सब में बहुत interest है. Okay? जैसे most of you are, even I was from a very middle class family. I'm from a middle class family. Those are my parents. That is my family. That is my wife, my daughter, myself over there. And this is typically a typical middle class family. इसके लिए मेरी शुरुआत भी जब हुई ना तो मेरी शुरुआत बहुत छोटे तरह से हुई। 1992 में मैंने मेरा पहला नौकरी किया। मेरे को नौकरी मिला ये कंपनी में और बाय फ्लूक में ज्वेलरी इंडस्ट्री में नौकरी करने को चला गया। यहाँ पे मेरा पगार 1,600 रुपया था महीने का। I started with 1,600 rupees a month for a continuous period of 1.5 years. बोलने को मेरे को इंटरनेशनल सेल्स संभालने दिया था लेकिन सीखने को इतना कुछ नहीं मिल रहा था।
1-1.5 साल नौकरी करने के बाद मेरे को भी आया कि शायद मेरे को ये कंपनी छोड़ना चाहिए। ये कंपनी ने पूछा कि आप क्यों छोड़ना चाहते हैं, मतलब मेरे को कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, काम तो आपने दे दिया, लग रहा है कि बड़ी फैक्ट्री है, बड़ी कंपनी है, सीट्स है, ऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ है, लेकिन मेरे को कुछ नहीं ज्यादा सीखने मिल रहा है, मैं तो पेपर वर्क कर रहा हूँ, सीखने का कहाँ है। दे सेड वी विल ट्रेन यू प्रोवाइडेड यू स्टिक विद अस। तो उन्होंने मेरे को बाबू के जैसा, वर्कर के जैसा फैक्ट्री में बिठा दिया 7 महीना, और मेरा जो पगार था 1600 का वो चालू रखा, विद द प्रॉमिस दैट मैं सब कुछ सीख के उनके लिए एक नई फैक्ट्री खड़ा करूं और वो संभालूं। तो आफ्टर डूइंग दैट आई लर्न प्रोडक्शन, एंड इन दैट सेम फैक्ट्री, आप नीचे राइट बॉटम में देखोगे एक छोटा पिक्चर है, वहां पे लिखा है इंटरगोल्ड इंडिया लिमिटेड प्लैटिनम डिवीजन। तो एक छोटा, बड़े फैक्ट्री में एक छोटा मेरे को 3000 स्क्वायर फीट का जगह दे दिया कि आप 20 वर्कर को लेके एक फैक्ट्री, मिनी फैक्ट्री चालू करो जहां से प्लैटिनम इंडिया से एक्सपोर्ट होएगा इंटरनेशनल मार्केट पे। बिकॉज वो मैं सक्सेसफुली कर पाया, बिकॉज मेरे को ट्रेनिंग मिला था। फिर कंपनी ने बोला कि लिसन, यू आर डूइंग वेरी वेल, यू नीड टू ग्रो। जब भी कंपनी ने अपना रिटेल वेंचर चालू किया, यही कंपनी, ओके, फर्स्ट आई वाज डूइंग इंटरनेशनल सेल्स, देन आई वाज रनिंग अ फैक्ट्री। जब भी रिटेल वेंचर चालू किया तो मेरे को बोला कि आप तो पीपल्स पर्सन हो, आप फैक्ट्री में कितने टाइम बंद रहोगे, आप हमारे साथ बाहर निकलो और हमारी रिटेल की दुकान शुरुआत करो। तो ये जो ब्रांड ऑरा है, जब ये शुरुआत हुई थी उसका नाम इंटरगोल्ड था। तो 7 years I was heading all the retail operations of Aura. So I began by doing inventory management. Inventory means stock keeping, quality control, वो सब कर रहा था बैक ऑफिस का। फिर मेरे को बोला कि लिसन, यू आर द वन हु नो सबसे ज्यादा ज्वेलरी के बारे में, आप बेचो। तो मेरे को ऊपर से नीचे निकाल के मेरे को दुकान का मैनेजर बना दिया, पहली दुकान, और वहां पे मैंने ज्वेलरी बेचने को शुरुआत किया। So whether it is the biggest celebrity and the biggest star and a Katrina Kaif and a Serena Jaitley to the Femina Miss India, मैंने हर एक को पर्सनली ज्वेलरी बेचा, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, those are all my pictures, okay, when I was selling jewelry. Okay? So from a Sachin, you see Zakir Hussain, Shobha Day, Rahul Dravid, Rageshwari, all of this I was doing when I was running that store. I was the manager and I had a small team of people with me. Okay? Automatically, because मैं जिम्मेदारी लेने गया और मैंने वही कंपनी के साथ 5 साल काम किया, तो मेरा पगार भी बढ़ गया, मेरा पगार बढ़ते गया। तो शुरुआत 1600 से हुई थी, लेकिन 5 साल के बाद मेरा पगार 7000 रुपया हो गया था, 8000 हो गया था। आज वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज 7000 इज नथिंग, ऑल ऑफ यू वांट टू स्टार्ट विद द सैलरी ऑफ 10,000 रुपीज, बट वो जमाने में 1600 वाज डिसेंट फॉर अ ग्रेजुएट टू स्टार्ट। ये करने के बाद मेरे को बोला कि लिसन, आप एक दुकान मत संभालो, हमको दुकान ग्रो करना है, तो आप घूमो फिरो और सारे दुकान संभालो। तो मेरा जॉब बदल गया था कि बॉम्बे में एक दुकान से मेरे को 5 दुकान लगाने को बोला। तो एक यूजिस रोड से लेके पवाई में लेके एट अंधेरी, लोखंडवाला, एट घाटकोपर, एट बोरबी, आई सेट अप 5 stores and I became operations manager of all those 5 stores, and this is the way my profile changed. Okay, after setting up 5 stores, the company said, अभी हमको पूरी इंडिया में दुकान डालना है, आप अभी खाली बॉम्बे मत देखो। तो मेरे को बोला कि आप पूरी इंडिया घूमो और जहां सही लगा वहां पे आप दुकान सेटअप करो। दुकान सेटअप करके आप उस दुकान का मार्केटिंग करो और मर्चेंडाइजिंग करो। मार्केटिंग का मतलब रिटेल शॉप के लिए एडवर्टाइजिंग, पीआर, सोशल मीडिया, ब्रांड मैनेजमेंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सीआरएम, ये सब मार्केटिंग होता है। तो उन्होंने बोला कि अगर हमारे पास अभी 17 दुकान पूरी इंडिया में हो गई है, ये दुकान को चलाने के लिए मार्केटिंग बहुत ही अच्छी तरह से करना पड़ेगा, वो आप संभालो। मर्चेंडाइजिंग होता है राइट स्टॉक, हमारे दिल्ली के दुकान में कौन सा स्टॉक होना चाहिए, कलकत्ता में क्या होना चाहिए, घाटकोपर में क्या होना चाहिए, पवई में क्या होना चाहिए, बोरीवली में क्या होना चाहिए, सब जगह स्टॉक ना अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। सेम स्टॉक सब जगह चलेगा नहीं, हर एक मार्केट का टेस्ट अलग होता है। तो ये जो मार्केट का टेस्ट जानने का जो किस्सा होता है ना ज्वेलरी में, उसको मर्चेंडाइजिंग बोलते हैं हर चीज में। ओके, तो अगर फॉर एग्जांपल नाइकी ये टी शर्ट लॉन्च करेगा और इस डिजाइन को लॉन्च करेगा, नाइकी जानता है कि मैंने ब्लू टी शर्ट बहुत बनाई है, तो अभी मेरे को येलो, मेरे को पिंक, मेरे को रेड, मेरे को ग्रीन, मेरे को टर्कोइज ब्लू में मैं ये 5 कलर में ये टी शर्ट बनाऊंगा। और ये टी शर्ट सबसे ज्यादा मीडियम साइज बिकती है, तो मैं मीडियम इतना, एक्सेल इतना, लार्ज इतना, स्मॉल इतना, इस तरह से बनाऊंगा। ये सेम टी शर्ट का वर्जन मैं लेडीज के लिए बनाऊंगा, उसका फिटिंग अलग होगा। ये जो साइंस होता है ना, ये साइंस को मर्चेंडाइजिंग बोलते हैं। तो वो कपड़े वाले भी करते हैं, वो ज्वेलरी वाले भी करते हैं, वो किराने वाले भी करते हैं। सो नोइंग व्हाट इज द राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इज कॉल्ड मर्चेंडाइजिंग। तो बिकॉज हमारी दुकानें बढ़ गई थी, मेरे को बोला कि ये सारा दुकान तो तू नहीं संभाल सकता, ये सारे दुकान का ऑर्गेनाइजिंग संभाल, सारे दुकान का।
So I was traveling all over the country and I came to know what sells, where it sells, how to set up a shop, how to take people, how to recruit them, coding करूँ, मीडिया टाइम्स का, मीडिया नेट करूँ, बॉम्बे टाइम्स करूँ, क्या करूँ जिससे धंधा मेरे दुकान का हो. So I was doing this. After that, the company also decided to set up a wholesale company. Okay, ये सब रिटेल में था. होलसेल मतलब जहाँ पे हम लोग सप्लाई कर रहे हैं ज्वेलरी सारे अलग अलग फैमिली ज्वेलर्स को. अगर आप में से कुछ लोग बोरिवली के हैं तो बोरिवली में एक रोड है एलटी रोड. एलटी रोड पे बहुत सारे दुकानें हैं. ओके, फ्रॉम मनु भाई, ओम ज्वेलर्स, you have Gadgil, you have Tanishq, you have Jayesh Art Jewelers in Malad, you have Antara, you have so many jewelers. हर ज्वेलर का टेस्ट ऑफ ज्वेलरी ना अलग अलग है. तो इनको क्या सप्लाई करता है, एक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करता है सप्लाई करता है. तो मैं उसी तरह की एक मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को इसी ग्रुप की मैंने हेड किया और 2.5 साल मैं पूरी इंडिया में घुमा और मैं ज्वेलरी सप्लाई करता. तो बिकॉज मेरा बर्थ एक फैमिली एक ज्वेलर के घर पे नहीं हुआ, मैंने फिर भी वो इंडस्ट्री को और वो काम को परस्यू किया और मेरे को 4 अलग अलग बिजनेसेस सीखने को मिला. मेरा व्यू है कि अगर मैं ज्वेलर एक रिटेलर या ज्वेलरी रिटेलर के घर में पैदा होता और मैं वो एक दुकान संभालता तो मैं आज तक वो एक ही दुकान संभालता और मेरे को खाली रिटेलिंग आता. मेरे को ये 4 अलग अलग बिजनेस नहीं आता. मेरे को पूरे इंडिया घूमने का मौका नहीं मिलता. मेरे को वो एक ही दुकान की 4 दीवारी में वो 2000 ग्राहक के बारे में सब कुछ पता चलता. लेकिन because I was not a jeweler, I got to learn so much. So it's the same thing which applies to all of you. अगर आप में चाह है सीखने की तो आप कुछ भी सीख सकते हो. If I was a jeweler, I would not get to learn all of it. I would get to learn only one business, which was the father's business. But because I was not a jeweler and because मेरे को ज्वेलरी का धंधा नहीं करने का था, my bosses allowed me to learn everything and I got to learn 4 businesses and started with them. After this is only when in 2005 मैंने बोला कि मैं ज्वेलरी के बारे में इतना सीख गया हूँ, मैं खुद की कंपनी शुरुआत करूंगा. मेरी खुद की कंपनी का नाम है न्यूज. मेरा नाम नवीन है. नवीन का मतलब लोकल लैंग्वेज में नया, तो न्यू. सदारंगानी बहुत लंबा है मेरा सरनेम, तो एस ले लो, तो न्यू प्लस एस बिकम्स न्यूज. उसको अगर मेरे को ट्रेडमार्क करना है या उसको अगर मेरे को ब्रांड बनाना है तो NEWS का स्पेलिंग मैंने NYUZ कर लिया. NYUZ कर दिया तो नाम हो गया वो न्यूज. दैट्स व्हाट न्यूज इज अबाउट. और न्यूज में हम लोग जैसे हम आपका ट्रेनिंग कर रहे हैं वैसे इंडिया के टॉप मोस्ट ज्वेलर्स लोग का हम ट्रेनिंग करते हैं. तो उनके सेल्स स्टाफ का जो ट्रेनिंग है वो हम पूरी इंडिया में घूम फिर के करते हैं. हम बहुत ही छोटी टीम है, हम अंधेरी बॉम्बे में है और हम सेल्स स्टाफ ट्रेनिंग से लेके ओनर्स का कंसल्टिंग सब कुछ करते हैं. दिस इज द काइंड ऑफ ट्रेनिंग दैट वी आर डूइंग एंड हाउ वी डू इट. देयर आर क्लासेस, देयर इज इंटरैक्टिव मेथोडोलॉजी. इस तरह से हम लोग करते हैं पूरी इंडिया में. आप जितने भी बड़े ब्रांड्स लोगे, जितने भी फैमिली ज्वेलर लोगे, उनके स्टाफ का ट्रेनिंग हम ही करते आए. सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूज. ऑल्सो बिकॉज वी आर ट्रेनिंग सेल्स पीपल एंड वी मेड अ डिफरेंस टू द इंडस्ट्री. बड़े बड़े ज्वेलरी इंडस्ट्री के कॉन्फ्रेंस पे भी हमको बुलाया जाता है एज नॉलेज पार्टनर टू प्रेजेंट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द ज्वेलरी इंडस्ट्री. तो हमारा रीच एज कोचिंग एंड कंसल्टिंग ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा और बड़े पैमाने पर हो गया. आई डोंट वांट टू से एनीथिंग एल्स. जिसको ज्यादा जानना है वो nyuz.com पे जाएगा, उसको हमारी कंपनी के बारे में सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. ओके, आई डोंट वांट टू बोर यू विद मोर ऑफ माई सेल्फ. ये भी मेरे को आपको बताना इसके लिए इम्पोर्टेंट था बिकॉज जब तक आप सामने वाले पे भरोसा नहीं करोगे, जब तक आप उसका क्या नॉलेज है. हम स्कूल में भी जाते हैं तो हम नामी स्कूल में इसके लिए जाते हैं बिकॉज हम जानते हैं कि ये नामी स्कूल है तो इसके प्रोफेसर लोग ट्रेंड होंगे. So over here you have come because somebody called Share Skills Online has got you here. Whether learn or not learn is dependent on you. ये learning तभी होएगा जब भी आप सामने वाले को accept करेंगे. इसके लिए अमिताभ बच्चन तो already accepted है, तो उसने जो बोल लिया आपने मान लिया. मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूँ, तो मेरे को अपना credentials prove करने के लिए, मैंने एक trust जगाने के लिए मैंने आपको मेरा background दे दिया. Okay? Now going forward, okay, as we go forward, जो मुद्दा है, the reason we are all here is because we are largely students, or we could be people who have given up studying and are looking to get into a job, or we are people who are doing some job but we are not very happy but want to get into a better job. और हमको लग रहा है कि शायद ज्वेलरी इंडस्ट्री हमारे लिए एक अच्छा माध्यम है, या there is an industry called jewelry और हमारे लिए ये शायद एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है. अगर आपका सोच ये है तो ये जो चीज मैं आपसे शेयर करने वाला है आपके लिए एकदम परफेक्ट है बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्चुअली गिव यू एन इनसाइट एज टू हाउ टू गो अबाउट द ज्वेलरी इंडस्ट्री. ओके, ये इनसाइट मैं थ्रू सम प्रेजेंटेशन दूंगा
आप ध्यान से वो प्रेजेंटेशन देखो, लेकिन उससे ज्यादा आप ध्यान दो जो मैं बोलना चाहता हूँ। Whatever I'm talking, Vaibhav, is it making sense to you so far? Yes, yes, yes. Is of the course. language understandable by everybody, you think? Yes, yes. Comfortable, एकदम comfortable. Okay. Going ahead from here, हम सब इंडिया में हैं, आप सब इंडिया को देख रहे हो, मैं कब से इंडिया को देख रहा हूँ। एवरी टाइम मेरे को नई नई गवर्नमेंट बदलती है, नई नई सरकार आती है, सभी लोग होप दिखाते हैं कि अरे अभी तो इंडिया आगे जाने वाला है। ये 2007 से मैं देख रहा हूँ, ईयर ऑफ इंडिया, ईयर ऑफ इंडिया, ईयर ऑफ इंडिया। आज भी लोग बोलते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, कभी आने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं। ओके, ये एक हमारी प्रवृत्ति है, हमारा नेचर है कि हम सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं। अगर हम आज के दिनों में, इन दीज डेज ऑफ द वायरस, इफ यू लुक एट द टीवी, जो भी आपको दिखेगा ना, पूरी दुनिया का हालत जो दिख रहा है और इंडिया का हालत जो दिख रहा है, अगर आप समझदार हो तो आपको लगेगा कि लिसन, हम लोग फिर भी दुनिया से बेटर हैं, हम लोग फिर भी बहुत ज्यादा टॉलरेंट है, हम लोग फिर भी बहुत ज्यादा सुनते हैं ऊपर वाले की। अगर ऊपर वाला बोलता है कि लॉकडाउन मानो, तो हम लोग मान रहे हैं, नॉट लाइक द अदर कंट्रीज विच आर गोइंग हेवायर। तो हमारे में जो सहनशीलता, जो टॉलरेंस, जो वर्च्यूज है ना, बाकी के देशों में नहीं है। इसी के कारण we have been projected in the world as a world leader. Finally, we feel that in the coming times, अगले 1.5-2-3 साल में ना, हम एक्चुअली सुपर पावर बनने का चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। People are actually hoping that the world will look at India as the super economy for production, for marketing, for distribution, because यहाँ पे लेबर भी चीप है, टेक्नोलॉजी भी जो मांगता है हम लोग बराबर से डेवलप करते हैं। जितने भी ज्ञानी लोग हैं, जितने भी आईटी के लोग पूरी दुनिया में हैं, सब इंडियंस ही हैं, यहाँ से ही जाते हैं। आज दुबई में भी लोग दुबई चला रहे हैं तो इंडियंस ही हैं जो दुबई चला रहे हैं। तो इफ वी हैव सो मच ऑफ टैलेंट, देन अभी अगर पूरी दुनिया को अगर रीसेट बटन दबा दिया है भगवान ने कि अभी स्टार्टिंग से शुरुआत करो, तो आज हमारा पलड़ा इज वेरी भारी, वी आर एट द इक्वल लेवल। ये लेवल से हमको जंप मारने के लिए ना, हमको 2-3 चीज ही चाहिए। वो चीज है, एक है हमको टैलेंट चाहिए जो हमारे पास है, और दूसरा जो नया टैलेंट है, जो नया जनरेशन है, उसको ट्रेनिंग का माध्यम पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन इंडिया विल एक्चुअली बी अ सुपर पावर। सेम वे व्हेन इंडिया बिकम्स अ सुपर पावर, व्हेन एवरीथिंग ग्रोज, ऑटोमेटिकली इंडिया का जो पॉपुलेशन है, whether it is girls, whether it is women, whether it is old ladies, जो भी पैसा बचता है ना, और जो हम घर में बचाते हैं, एवरी ईयर पीपल एंड अप बाइंग सम ज्वेलरी और द अदर। आज के जमाने में शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज वो इसेंशियल प्रोडक्ट नहीं है, इट्स अ नॉन इसेंशियल प्रोडक्ट, इट्स नॉट लाइक रोटी कपड़ा मकान, इट कम्स मच लेटर। लेकिन हर औरत, हर वुमेन पैसा बचा के वो कुछ ना कुछ ज्वेलरी लेती है। गरीब भी होता है ना, गरीब के घर पे भी जब शादी होता है ना, तो वो भी 2-3 चीज ऑफ ज्वेलरी लेता है। ओके, वो इतना छोटा वाटी वाला मंगलसूत्र भी लेगा, भले वो 3 ग्राम सोने का होएगा, वो इतना छोटा नथ भी लेगा, भले वो 1 ग्राम का होएगा, भले वो बहू को कान का बाली देगा, भले वो 4 ग्राम का होएगा, बैंगल देगा 6 ग्राम का होएगा। तो फ्रॉम द लोएस्ट रंग ऑफ सोसाइटी इन इंडिया टू द हाईएस्ट रंग, एवरीबडी बिलीव्स दैट सेलिब्रेशन को ज्वेलरी के साथ होना चाहिए, कोई भी ज्वेलरी को इग्नोर नहीं करता है। ओके, बिकॉज ऑफ दिस हमारा देश का आबादी बहुत ज्यादा है, इसके लिए हमारा ज्वेलरी इंडस्ट्री जो है ना, वो ऑलवेज स्पार्कलिंग होएगा। इसके लिए मैंने वहां पे स्पार्कल डाला है डायमंड का, कि इंडस्ट्री ऑलवेज स्पार्कल होने वाला है इंडिया में, बिकॉज अनलाइक अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर ज्वेलरी इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, हमारे वहां ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट भी है, अडॉर्नमेंट भी है, तो हम लोग इस पे इन्वेस्ट करते हैं। इसके कारण जो देखा गया है ना हमारे देश में ज्वेलरी इंडस्ट्री को लेके, मैं आपको बड़ा पिक्चर इसके लिए दिखा रहा हूं, तो आपको मेकअप करने हुए कि क्या ये फ्यूचर है कि नहीं है इंडस्ट्री में, उसके लिए आपको बड़ा पैमाना समझना पड़ेगा। पूरी दुनिया में हम लोग ना एक जमाने तक, टिल अबाउट अ कपल ऑफ इयर्स बैक, वी वर नंबर 1 प्रोड्यूसर्स ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ गोल्ड। दुनिया को लगता है हम गरीब देश हैं, लेकिन सारे देशों से सबसे ज्यादा सोना हम लोग खपा देते। अभी लास्ट 1.5 साल से चाइना नंबर 1 हो गया, हम लोग सेकंड हो गए, बट येट पूरी दुनिया का 30% सोना हमारे पास है। सोचो, पूरी दुनिया एक तरफ, इंडिया एक तरफ, 30% ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड इज कंज्यूम्ड बाय इंडिया।
which means there's so much money which we don't know. हम लोग खाली दिखते हैं गरीब, लेकिन हर आदमी के पास बचा बचा के सोना पड़ा गया है. डायमंड जो बहुत ही एक्सपेंसिव स्टोन माना जाता है, पूरी दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट डायमंड ज्वेलरी मार्केट इंडिया है. नंबर 1 अमेरिका है, उसके बाद चाइना जापान शेयर करते हैं और बाद में इंडिया आता है. दिस इज द स्टेटस ऑफ इंडिया इवन इन डायमंड्स. मतलब इंडिया नॉट ओनली गोल्ड बट ज्वेलरी और डायमंड में भी बहुत इन्वेस्ट करता है. नंबर 3 एक नया मेटल था प्लैटिनम, जो सफेद कलर का था, बहुत ही हार्ड मेटल था. वो लॉन्च होके इंडिया में 2000 में लॉन्च हुआ. 15 दुकान 16 दुकान में था फर्स्ट ईयर में. आज 700 दुकान में प्लैटिनम मिल रहा है. मतलब ये भी मेटल जो जिसके बारे में किसको नॉलेज नहीं है, पूरी इंडिया में एक्सेप्ट हो गया. ये सारे अलग अलग काइंड ऑफ पुराने रिटेलर्स हैं. ओके, मे बी वी नो ऑफ सम, मे बी वी डोंट नो ऑफ सम, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर नॉट इन इंडिया, नॉट इन बॉम्बे, दे आर फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. इनको छोड़ के एक अलग पीढ़ी ऑफ रिटेलर्स आ गए हैं. ये लास्ट 10 साल की पीढ़ी थी. आज जो रिटेलर्स आ गए, यू हैव द तनेश, यू हैव कल्याण, यू हैव बोर्ड में मनु भाई, बांद्रा में अनमोल, गहना, साउथ बॉम्बे में यूटी जवेरी ले लो, घना सिंह ले लो. ऐसे हर मार्केट में, वामन हरी पेठे ले लो दादर में, चिंतामणी ले लो दादर में, पूना में पीएन गाडगिल ले लो, ब्रांड ले लो, देयर मलाबार, जॉय लुकास. तो इतने सारे नए नाम, इतनी सारी नई कंपनी आ गई है. हर ब्रांड जो पूरी इंडिया में फैला हुआ है, उसके पास 200-300 दुकान है. वो 200-300 दुकान में हर ब्रांड के पास 40-50 सेल्स पीपल है. इतने सारे लोग की रिक्वायरमेंट है ओनली सेल्स में, अगर हम रिटेल देखते हैं. लेकिन रिटेल में एक बैक ऑफिस भी है जहाँ पे बहुत कुछ काम होता है. जो मैंने बोला कि मैं इन्वेंट्री संभालता था, मैं मर्चेंडाइजिंग संभालता था, मैं मार्केटिंग संभालता था, मैं बैक ऑफिस का ऑपरेशन संभालता था. तो हर बड़ा रिटेल कंपनी को एक बैक एंड टीम भी होता है जो बैक ऑफिस काम करता है. The point I'm trying to put across is just like any other industry, जैसे कार इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, बहुत सारी अदर कपड़े की इंडस्ट्री है, ज्वेलरी का भी धंधा जो हम पहले एक दुकान बोलते थे, अभी वो ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री हो गई है. और उसमें भी हम सबका घुसना, या जिसको शौक है ज्वेलरी का घुसना, देयर इज स्कोप फॉर एवरीबॉडी इन दिस थिंग. Like most of you will say, and the first question Vaibhav asked me is that, sir, आपको लगता है ग्रेजुएट होने के बाद किसको नौकरी मिल सकती है यहाँ पे? My answer to him was, ग्रेजुएशन छोड़ो, अगर कोई 12वीं पास भी है और FY कर रहा है, पढ़ाई चालू है, और वो सुबह को कॉलेज जाता है, और कॉलेज जाने के साथ साथ वो नौकरी भी करना चाहता है, then also there is a choice of choosing to be in jewelry. In which part of jewelry? ज्वेलरी रिटेल में तो उसको जॉब मिल ही जाएगा. क्यों? क्योंकि उसको जो नॉलेज चाहिए ना ज्वेलरी रिटेल का, वो शॉर्टकट में एक तरीका है जहां से वो गेन कर सकता है वो नॉलेज. अगर वो पर्सन, अगर वो लड़का या लड़की 20, 21 ईयर, 22 ईयर्स, 19 ईयर्स, थोड़ा मेच्योर है, थोड़ा उसका पर्सनैलिटी ठीक है, थोड़ा डिसिप्लिन है, ईमानदार है, एथिकल है, और वो ज्वेलरी इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ सीख लेता है. एंड वी हैव अ कोर्स आफ्टर दिस व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, कि ये कोर्स अगर आपने कर लिया, ओके, वो कोर्स का नॉलेज, इतना सारा नॉलेज है कि आप सरप्राइज्ड होगे कि इतने सारे लोग जो काउंटर के पीछे खड़े हैं ना, उनको भी वो नॉलेज नहीं होगा जो आपको मिल सकता है इन एज लेस एज 9 days. 3 days का हम 3 कोर्स करने वाले हैं. 3 दिन. एक कोर्स प्रोडक्ट का होएगा, एक कोर्स मार्केट का होएगा, एक कोर्स हाउ टू फिट योरसेल्फ इनटू द मार्केट का होएगा. ओके, ये तीनों कोर्स 3 घंटा रोज 1-1 घंटा का इस तरह का होएगा. वो कोर्स के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा. लेकिन अगर आपने वो किया, और अगर आप एक स्मार्ट पर्सन हो जो ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मे बी लिटिल बिट ऑफ गुजराती भी अगर आता है, तो आपको ज्वेलरी इंडस्ट्री में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल नहीं है रिटेल में. और मेरा बिलीफ है कि रिटेल में फ्रंटलाइन जो सर्विस करता है ना, जो काउंटर पे होता है, जो सेल्स करता है या कस्टमर सर्विस करता है, आने वाले टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन वो होने वाला है. और वही जॉब सबसे ज्यादा है. बिकॉज पीपल डोंट नीड सो मेनी मार्केटिंग पीपल, दे डोंट नीड सो मेनी एडवर्टाइजिंग पीपल, दे डोंट नीड सो मेनी पीपल फॉर मैनेजमेंट, दे नीड मेनी पीपल ऑन द काउंटर फॉर सेल्स. और हर दुकान में सेल्स के 20 जन होते हैं और बैक ऑफिस के 2 जन, 3 जन, 4 जन होते हैं. बड़ा ब्रांड हुआ तो उसके पास सेल्स के 10,000 लोग होते हैं और ऑफिस के 600 लोग, 400 लोग होते हैं. तो सबसे easiest to get a job in the jewelry retail industry is in the frontline sales.
which is in retail. Some of you may like it, some of you may say नहीं, मेरे को काउंटर पे सेल्स गर्ल नहीं बनना है, I don't like to be called a sales girl. वो आपका सोच है कि आप सेल्स गर्ल अपने आप को समझते हो, लेकिन जो भी काम आपको ज्वेलरी में करना है, अगर आपने काउंटर पे रह के सेलिंग नहीं किया ना, आप कुछ भी नहीं सीखोगे. शायद सेल्स गर्ल बनना आपका एंट्री है ज्वेलरी इंडस्ट्री में. शायद 2 साल के बाद आप इतना कुछ सीख लोगे कि आप शायद बॉस से बोल सकते हो कि कैन आई बी पार्ट ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट, बिकॉज आई एम एबल टू सॉल्व पीपल प्रॉब्लम वेरी वेल. मैं सेल्स में भी हूँ, लेकिन जो भी अंदर का झगड़ा होता है मैं सॉल्व कर सकती हूँ. प्लस मेरे को कंप्यूटर्स आता है, प्लस मेरा इंटरेस्ट है एचआर में. क्या मैं एचआर टीम का हिस्सा बन सकती हूँ, या क्या कैन यू गिव मी द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एचआर? मे बी इफ इट इज अ स्मॉल स्टोर दे विल अलाउ यू टू डू दैट. दे विल नॉट इंसिस्ट कि आपके पास एचआर मैनेजमेंट किया है क्या, आपने आपके पास क्वालिफिकेशन है क्या, शायद नहीं. बिकॉज एचआर इन अ ज्वेलरी शॉप is a very simple job. It doesn't require too many complexities. So beginning from the sales counter, you can choose to be in HR. You can start learning designing by the way, and you can even become a designer. You can start learning social media and you can be part of the brand management team. बहुत कुछ बन सकते हो, लेकिन ये सब कुछ बनने को ना आपको काउंटर का एक्सपीरियंस और कस्टमर का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है. इसके लिए मेरा मानना है कि फ्रंटलाइन सेल्स एंड कस्टमर सर्विस पीपल इन अ ज्वेलरी स्टोर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. उनको ही एक्चुअली पता है कि एक्चुअली क्या हो रहा है मार्केट. ये सारा बड़े धंधे का एक रूप है. ओके, कि बड़े बड़े जो दुकान होते हैं उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, तो उनके पास बहुत सारी डिजाइन होती है, उन लोगों का मर्चेंडाइजिंग टीम होता है, बहुत जगह पे दुकान खोलते हैं. तनिष्क का बोल रहे 200 के ऊपर दुकानें हैं, सेंको के 70 के ऊपर दुकानें हैं. तो उनके पास पैसा है और बहुत दुकानें खोल सकते हैं. एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, मतलब अमिताभ बच्चन से लेके कटरीना कैफ से लेके करीना से लेके प्रियंका, सबको उन्होंने मापा है मार्केटिंग, प्रमोशंस, पीआर में. तो पैसे से ये सब पॉसिबल है. लेकिन अच्छा आदमी जो काउंटर पे अपना जॉब बराबर से करे, लगन से करे ना, वो मिलना सभी कंपनी को बहुत मुश्किल है. So for all of you who are students, if you make up your mind that you want to learn the jewelry industry and then get in, then there is a very big potential, because आज की तारीख में ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो भी काउंटर पे है ना, वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है. आप जाके जब इंटरेक्ट करोगे आपको पता चलेगा कि दे नॉट द मोस्ट एजुकेटेड. और कस्टमर्स जो नए आ रहे हैं वो सब इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, सोशल मीडिया पे देख के इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और सामने वाले को इंग्लिश बात करने नहीं आता है. So if you are well spoken, if you have a good personality, if you're able to discipline yourself, if you're ethical, all of this, and you do a basic course in jewelry, it's very easy to get good. And there is nothing in this industry which can beat human resource capital. Human resource capital मतलब people का capital. आदमी लोग सबसे ज्यादा important है. दुकान, एडवर्टाइजिंग, ज्वेलरी डिजाइन, वो सब पैसे का चक्कर है जो मालिक के पास है. उसके पास अच्छे लोग नहीं है. एंड अच्छे लोग हम सब बन सकते हैं अगर हम बराबर ट्रेन हो जाइए इंडस्ट्री के लिए. And you can get all of this. You can get a guaranteed employment just like any other bank job or whatever corporate job. यहाँ पे भी अगर आप अच्छे आदमी हैं तो आपको guaranteed employment मिल सकता है. मैंने पूरी लाइफ मेरी कंपनी चालू करने के पहले 13 years I was with one company. Okay, so I was not switching jobs to get a 20% pay hike. अगर नौकरी छोड़ते हैं तो और कोई आपको 10%, 20% ज्यादा देता है. लेकिन अगर आप सेम कंपनी के साथ काम करो ज्वेलरी में, आपको ग्रोथ बहुत बड़ा मिलता है और आपको जिम्मेदारी का काम मिलता है, आपका सीखना भी चालू होता है, और सडनली आपका जो लेवल है ना वो एक अलग लेवल हो जाता है जो नौकरी छोड़ने से नहीं हो सकता. तो यू विल गेट अ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, यू विल गेट रिस्पेक्टेबल जॉब, यू विल बी ट्रेन्ड. पहले ट्रेनिंग का कल्चर नहीं था. अब जब से हमने शुरुआत की है ना, बहुत सारे ट्रेनिंग कंपनी और लैब्स और इंस्टीट्यूट्स आ गए ज्वेलरी में, जहाँ पे ट्रेनिंग भी होता है, स्कोप फॉर ग्रोथ भी होता है. मतलब सेल्स पर्सन बन के अगर आप चाहो तो आप बॉस को अप्रोच कर सकते हो, बैक ऑफिस के लिए, मार्केटिंग के लिए, एग्जीबिशन के लिए, वो सब के लिए. एंड देयर विल बी रिवॉर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस. सो बियॉन्ड योर सैलरी देयर कुड बी अदर रिवॉर्ड्स लाइक इंसेंटिव्स, कमीशंस, मोटिवेशनल प्रोग्राम्स, स्टाफ वेलफेयर अवार्ड. ये सब अभी छोटे छोटे कंपनी जो फैमिली ज्वेल्स हैं उन्होंने भी शुरुआत की है. इट्स नॉट ओनली कि आपको तनिष्क के साथ ही काम करना है, ब्रांड के साथ काम करना है. बहुत सारे फैमिली ज्वेलर्स ने भी ये सब चालू कर दिया है सिस्टम से काम करने. ये मैं नहीं. तो आपको किस चीज की जरूरत है अगर आपको ज्वेलरी इंडस्ट्री में जाना है? तो मेरा व्यू है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री ना बाकी की इंडस्ट्री के जैसा नहीं है. ओके, ज्वेलरी का इंडस्ट्री बहुत ही स्पेसिफिक इंडस्ट्री है. इसमें नॉलेज इन्वॉल्व है.
It's not like working for Nike or Reebok or for working for a कपड़े का दुकान which is selling t-shirts. Okay, वहाँ पे आप खड़े रह गए, t-shirt वहाँ पे लगाया है, 70 t-shirt, हर t-shirt पे टैग प्राइस लिखा है 999, 1499, 2499. कस्टमर को मालूम है मेरा एक्सेल साइज है, मीडियम साइज है, उठाएगा, आपको पूछेगा मैं ट्राई कर सकता हूँ, आप उसको ट्रायल रूम में पहुंचाओगे, वो बाहर आएगा, वो बिल बना देगा. देयर इज नो सेलिंग एज सच रिक्वायर्ड. बट ज्वेलरी में इस तरह का काम नहीं होता है. ज्वेलरी में बहुत सारा क्वेश्चन कस्टमर पूछता है. ये गोल्ड रियल है ना, इसमें मिक्सिंग तो नहीं किया गया है, ये हॉलमार्क है ना, अच्छा पैसा वापस करेंगे तो आपको कितना, हमको कितना पैसा मिलेगा, ये डायमंड का क्या प्राइस है, ये वीवीएस क्या होता है, हमको तो सुपर डीलक्स बोला उसने, वो दुकान में इतने का है. इतना सारा क्वेश्चंस जब भी कोई कस्टमर ज्वेलरी खरीदने जाता है, इतना सारा क्वेश्चन पूछता है. कस्टमर अगर 2 ग्राम सोना भी खरीदेगा, 2 ग्राम सोना आज के भाव से अगर 22 कैरेट है तो लगभग 7-8 हजार रुपया है. 8 हजार का सोना खरीदेगा ना कस्टमर, कम से कम 15 क्वेश्चन पूछता है सेल्स पर्सन. और वही कस्टमर जब भी कोई नाइकी की दुकान में एक अच्छा शू खरीदता है और वो शू 6,500 का है, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता है, खाली साइज पूछता है, ट्राई करता है, अच्छा लगा खरीद लिया. टीवी खरीदता है, इतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, गारंटी पूछता है, कौन सा कंपनी का है पूछता है, इतना क्वेश्चन नहीं पूछता है. बट ज्वेलरी खरीदने में इतना सारा क्वेश्चन पूछता है, बिकॉज ज्वेलरी में नॉलेज है. इसके लिए अगर आपको ज्वेलरी इंडस्ट्री में जाने का है, जो भी जॉब के लिए अप्लाई करना है, अकाउंटेंट का हुआ कोई भी होना, ये 3 चीज जो हमने वहां डाला है ना, ये 3 चीज आपको तय करना बहुत इंपॉर्टेंट है या लेना बहुत इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज द प्रोडक्ट बेस. ओके, तो वी हैव अ प्रोग्राम विच इज ओनली फॉर प्रोडक्ट. ऑनलाइन प्रोग्राम हमने डिवाइस किया है 6 स्किल्स के साथ मिलके. इट्स अ 3 आवर प्रोग्राम, 1 आवर एवरी डे. ओके, इस प्रोडक्ट प्रोग्राम में आपको एवरीथिंग अबाउट गोल्ड, एवरीथिंग अबाउट प्लैटिनम, एवरीथिंग अबाउट डायमंड्स एंड एवरीथिंग अबाउट जेमस्टोन, ये चारों चीज क्या होते हैं ना, ये चारों चीज का इंफॉर्मेशन ये प्रोडक्ट प्रोग्राम में आपको मिल गया. तो यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट. डायमंड के बारे में राइट फ्रॉम हीरा कहाँ से आता है, उसका डेफिनेशन क्या है, कितना फसेट होते हैं, हीरा का वैल्यू क्यों बढ़ता है, हीरे को देखने का कैसा होता है, ये 4C होता क्या है, सर्टिफिकेट क्या होता है, ये सब कुछ आपको ये 3 घंटे में मिलेगा जब ये आपको प्रोडक्ट बेस करेंगे. बट खाली प्रोडक्ट नॉलेज से कुछ नहीं होएगा अगर आपको पता नहीं है कि प्रोडक्ट नॉलेज से क्या करो. इसके लिए आपको ज्वेलरी मार्केट क्या है ना, उसका भी इंफॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है. तो ज्वेलरी मार्केट में हम सब कुछ सीखेंगे, अलग अलग बिजनेसेस क्या है ज्वेलरी में, रिटेल, होलसेल, ये हमने बड़ा ब्रांड देखा है DTC, वो करता क्या है, ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल क्या करता है. हमने सुना है कि अंधेरी ईस्ट में एक जोन है जिसको सीप्स बोलते हैं, उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, वहां से तो लोग अमेरिका भी जाते हैं वहां से. तो होता क्या है, ये सारा इंफॉर्मेशन ना ज्वेलरी मार्केट में हम सीखेंगे. ये भी 3 घंटे का प्रोग्राम है जहाँ पे हम सारा इंफॉर्मेशन देंगे. और द लास्ट है द मैच. इट इज अबाउट मैचिंग योर रिक्वायरमेंट्स एंड मैचिंग द कस्टमर टू द ज्वेलरी. तो इसमें ना 2 काइंड ऑफ मैच होएगा. आपको क्या करना चाहिए उसका भी आपको आइडिया आ जाएगा. दूसरा, अगर आप रिटेल चूज करते हैं बिकॉज वो सबसे शॉर्टकट है और सबसे इजीएस्ट है, ओके, काउंटर पे जाना, तो वहां पे कस्टमर किस तरह का होता है और किस तरह से हमको मैचिंग करना पड़ता है कस्टमर का टेस्ट और प्रोडक्ट का इन्वेंटरी. तो ये हमने 3 प्रोग्राम बनाए हैं, 3 घंटे के. यू कैन चूज टू डू ऑल ऑफ देम इफ यू आर वेरी सीरियस. इफ यू आर नॉट वेरी श्योर कि मैं तीनों प्रोग्राम करके ज्वेलरी इंडस्ट्री में जाना चाहती हूँ, ओके, तो आप कोई भी एक से ट्राई कर सकते हैं कि मैं प्रोडक्ट का नॉलेज तो ले लूं पहला, अगर उसमें मेरे को मजा आया तो मैं ज्वेलरी मार्केट का नॉलेज लूंगी, अगर उसमें मजा आया तो मैं मैच का नॉलेज लूंगी. बिकॉज वी वॉन्ट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड द ज्वेलरी इंडस्ट्री टू कम इन, इसके लिए हमने ये कोर्स भी ना बहुत सस्ता किया है, 600 रुपए में कोर्स किया है. आप कोई भी इंस्टीट्यूट में जाओ, कहाँ पे भी 60,000, 8,000, 10,000, 20,000 के नीचे कोई भी ज्वेलरी का कोर्स नहीं. वो भी एक कोर्स जो एक ही चीज खाली डायमंड सिखाता है. हम आपको जो कोर्स सिखाना जा रहे हैं, अगर आपने ये तीनों कोर्स कर लिया ना, आई एम श्योर दैट इफ यू आर स्मार्ट एंड इफ यू आर इवन इन FY और SY एंड यू अप्लाई फॉर अ ज्वेलरी जॉब, जब ये ज्वेलरी जॉब जब अवेलेबल होगी, आपका स्टार्टिंग सैलरी ना, ये जो आप पे कर रहे हो ना, उससे एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स ज्यादा होगा पहले महीने का पगार. तो जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप फर्स्ट मंथ में ही ना उसका 10 to 15 टाइम्स रिकवर कर लोगे. And it's very easily possible. People are going to be looking at new people because a lot of people who were working earlier, they were from different parts of the country and they've all gone back to their gaon and all of that. And a lot of retail companies will have requirements now. तो जैसे हम बोल रहे हैं कि ज्वेलरी इंडस्ट्री हिट है, वो हिट है थोड़े टाइम तक, 3 महीने तक, 6 महीने तक.
लेकिन 4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद वापस जब भी दिवाली के बाद मार्केट रिवाइव होएगा और ग्रो होएगा, तभी अच्छे लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये अच्छे लोग वो होंगे जिसको इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी आता होएगा और उनको ये बेसिक्स आता है, तो उनको इजिली एंट्री मिल जाएगा। तो द होल आइडिया इज दैट वी वांट टू मेक यू इक्विप्ड सो दैट अगर आप चाहते हो तो आप जॉब के लिए यहाँ पे ज्वेलरी इंडस्ट्री में कोई भी जगह पे अप्लाई कर सकते हो। Also, we have a lot of connections. We may also be able to help some of you who are really very good. We may also be able to help you because we also do a lot of training for the jewelry retailers. Like Harsh will share with you. Harsh, why don't you share a few pictures of the people that we do training for? Yeah. You need to stop your screen sharing first. हाँ. Okay. Okay. Naveen, what is the match? Can you tell me in the meantime? The match? Okay. The match is about the right job for the right person. तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में आपको क्या करना चाहिए? Okay. तभी आपको दिखाएंगे कौन से जॉब्स अवेलेबल है ज्वेलरी में, सेल्स में, बैक ऑफिस में, सब में क्या क्या जॉब्स अवेलेबल है, और आपका पर्सनालिटी के हिसाब से आपको कौन सा जॉब करना चाहिए आपको आइडिया आ जाएगा। बिकॉज आपको सारे जॉब्स का हम आइडिया देंगे। प्लस अगर आप रिटेल करना चाहते हो तो अलग अलग टाइप ऑफ कस्टमर कैसा कैसा ज्वेलरी खरीदता है वो भी हम दिखाएंगे। तो मैच में दोनों काइंड ऑफ मैचिंग है, रिटेल के लिए और आपके जॉब प्रोफाइल के लिए भी। अच्छा, exactly got it. So these are some people who Harsh said these are all big jewelry retail companies जिसके स्टाफ का ट्रेनिंग हम कर रहे हैं। ओके, so we are already doing training of a Chintamani, of a Jilly, of a CH in Baroda, of somebody Malabar Gold, ये सब हम कर रहे हैं। तो हमारा उनके साथ अच्छा इंटरेक्शन है। Many times they call us कि सर आपके पास 3 लोग हैं क्या, हमको 3 सेल्स पीपल चाहिए, भले उनको कुछ भी नहीं आता है चलेगा, हम उनको सिखा देंगे, लेकिन वो 12th पास या ग्रेजुएट होने चाहिए, पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसको काम करने के लिए एनर्जी होना चाहिए। बिकॉज हम लोग 10:30 बजे चालू करते हैं और शाम का 7:30 तक 8 तक हमारा दुकान चालू होता है। तो कोई अगर ऐसा है तो हम लोग को चाहिए। सैलरी हम 15,000 रुपया देंगे या 18,000 देंगे या 20,000 देंगे। ओके, हम ओके हैं विद दैट। So this is the kind of things that they may ask us and we may ask people who have done all of this कि भाई आप apply करो, it is possible. So these are some of the topmost, these are some of the topmost jewelry companies. कुछ का आपने नाम सुना होगा, कुछ का नहीं सुना होगा, because ये सब पूरे इंडिया में ये कंपनीज है पहले। Okay, Ash, that's fine. They got a fair idea about what this is. You can stop share over this, and we can. I want to. Okay. तो ये हमारा कोर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल बताना चाहता हूँ। एक छोटा वीडियो भी है, लेकिन मैं वो वीडियो नहीं प्ले करूंगा because we've actually spent almost 45 minutes or I'm sure some of you may want to be going back to some other class. तो ये जो कोर्सेज है, प्रोडक्ट कोर्स 600 रुपए का है, ज्वेलरी मार्केट का कोर्स 600 रुपए का है, मैथ का कोर्स 600 रुपए का है। ओके, ये कोर्सेज 9 तारीख से शुरुआत होंगे। ओके, वी आर मोस्टली प्लानिंग सुबह को 11:30 बजे ये कोर्स शुरुआत है, 11:30 to 12:30 तक ये कोर्स होएगा। ओके, प्रोडक्ट कोर्स अगर 3 घंटा है तो 3 दिन, 9, 10, 11। ओके, उसके बाद 1 दिन का गैप लेंगे और अगला कोर्स, उसके बाद अगला कोर्स। सो इफ यू आर रियली वेरी कीन, you should be looking at doing this, and you can get in touch with Vaibhav and put across to him that yes, we are interested and we can start this in the next week on the 9th. Yes, and this is a certified course, by the way, students. You will get the certificate for this course as well as the employment opportunities updates you will be getting. We are also starting with a digital classroom concept, okay, where you will be getting all the upgrades about the jewelry industry, all the job opportunities. Naveen sir will be putting into that, and also me from my side will be putting those opportunities into that. So that concept is also there. Correct. So like he told you, digital classroom एक नया इनिशिएटिव है कि हम चाहते हैं कि जितने लोग बाहर से स्टूडेंट्स हैं वो ज्वेलरी इंडस्ट्री में आए। तो फॉर द फर्स्ट मंथ वी आर नॉट इवन गोइंग टू चार्ज यू एनीथिंग, एवरीबॉडी कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द डिजिटल क्लासरूम। हम वो क्लासरूम में हर सेकेंड और थर्ड डे पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डालेंगे ज्वेलरी इंडस्ट्री के बारे में, कुछ नॉलेज डालेंगे। तो ऑटोमेटिकली आप डिजिटल क्लासरूम में होगे तो आपको नॉलेज रोज मिलते जाएगा।
after 1 month, we are going to actually start charging. So the first month it's free. So everybody who's keen, should join into the digital classroom. Vaibhav will share the link with you, and you should become a part of that anyway. Okay? And ये जो program है, I think if you're really very keen, 600 rupees is not a lot of money. A lot of people spend more on 2 cups of coffee at a coffee shop. A lot of people from you may not be going to such coffee shops, but अपने आप पे ना थोड़ा खर्चा इन्वेस्ट करने शुरुआत करो. आप मत रुको कि कोई मेरे पे इन्वेस्ट करेगा या कंपनी इन्वेस्ट करेगा. अपने आप पे इन्वेस्ट करो और थोड़ा जिम्मेदारी लो लाइफ का, so that you can go ahead. That's all that I have to share. Okay. Any other information, you can, Vaibhav का number यहाँ पे है, you can call Vaibhav, you can talk to him, and the Google Classroom also, Vaibhav will share all the details with you. In the meanwhile, I'll just share the feedback form. अगर और किसी Okay. को भी कुछ doubts है या और कुछ extra जानना है next session के लिए, so हाँ. मैं chat में एक link share कर रहा हूँ. Okay. आप लोग वो भर सकते हो. Yeah, it's there. Is there in the chat? Yeah, I put it up. Okay. तो हर शेयर फीडबैक फॉर्म, एक URL है, आप उसको क्लिक करो, उसमें आपका नेम, एड्रेस, जो भी कुछ होएगा वो भर के, आपका व्यू क्या था ये क्लास के बारे में और आपको क्या लग रहा है कि आपको इसमें इंटरेस्ट है, वो जो भी है ना, वो फीडबैक फॉर्म में वहाँ पे लिखा गया है. ओके, यू जस्ट हैव टू फिल इट अप. इट विल टेक यू लेस देन 2 मिनट्स. अगर आप अभी भी करते हो ना, 2 मिनट के ऊपर नहीं लगेगा वो फीडबैक फॉर्म भरने. तो माय रिक्वेस्ट टू यू इज दैट ऑल यू हैव टू डू इज गो टू द फीडबैक फॉर्म, फिल अप द डिटेल्स, एंड देन वी विल टेक इट फॉरवर्ड. ओके, अगर किसको कुछ क्वेश्चन एंड आंसर है तो we'll spend about 5 minutes for any question answer if you want to. Otherwise, we can wrap up. So if anybody has any questions or answers, first fill the feedback form up, and if there's any question, you can put on the chat and we can address those questions also. And you all can, if you want to show your video, it's fine. Anybody, any questions if you have? Okay, I don't think. I would like to one question. I would like to ask that how will be that jewelry industry according to you after COVID-19? Okay, so this is a very it's like a very industry question. आपने बहुत ही भारी question पूछा है वैभव. तो मेरा व्यू ये है कि ना तो मैं ना तो कोई प्रेडिक्ट कर सकता हूँ. Okay. एक चीज क्लियर है कि ज्वेलरी इज नॉट टॉप ऑफ माइंड व्हेन यू कम टू बाय समथिंग. ओके, जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा लोग ज्वेलरी की दुकानें में नहीं भागेंगे. okay? पहले लोग जिसको शौक है थोड़े कपड़े खरीदेंगे, वो भी अभी नहीं होएगा क्योंकि मॉल इतना जल्दी नहीं खुलेगा. तो कब लोग कपड़े खरीदते हैं, होटल में जाके खाना पीना चालू करते हैं, थोड़ा बहुत ट्रैवल करते हैं, जिसके घर पे शादी है वो ही शायद ज्वेलरी खरीदने अभी निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा. तो अगले 4 months, ओके, भले लॉकडाउन है या नहीं है, अगले 3 या 4 महीना ना इज लिटिल ब्लीक फॉर द ज्वेलरी इंडस्ट्री. बस पूरे साल में जो लोग ज्वेलरी नहीं खरीदते हैं, ये एग्जैक्टली वही 4 month है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जहाँ पे ज्वेलरी का खरीदी लो होता है. हर साल बारिश का मौसम होता है, एग्जाम्स होता है, लोग छुट्टी पे भी जाते हैं एग्जाम के बाद, तो सभी लोग का पैसा ना छुट्टी पे जाता है और घर के अंदर रहने में जाता है. अगस्त के बाद जब भी गणपति आता है सितंबर में, ओके, नवरात्रि आता है, दिवाली आने को चालू होता है, तभी ज्वेलरी बाइंग सीजन होता है. तो एनीवेज अगले 3 महीने तक ना वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग ग्रेट टू हैपन. मोस्ट ऑफ द मैजिक विल हैपन ओनली आफ्टर सितंबर, अक्टूबर. Okay, right. Okay, so we'll wrap up here. Yes. ठीक है. Students, if you want to get in touch with about this course and about other things, then you can contact me. My contact number is anyways with you. Ping me on WhatsApp and also share with your friends. Okay. So thank you very much for your patience because पहले भी आपने मेरा 45 minutes का session attend किया था. Okay. And so thank you very much. ठीक है. Okay. Thanks a lot, Vaibhav. Okay. Bye.